The next part is following figure shows a trapped gas inside of some cylinder with a piston right here in front of you. This one is the gas present and this one is the piston. Movable piston hota beta, it can move left or right. It's movable piston. Okay, आसानी से आप इसको प्रेस भी कर सकते हो एंड अनप्रेस भी कर सकते हो. The volume of the gas is 240 cubic centimeter. All right, the volume is 2. हम इसको अब देखते हैं कि पेपर के अंदर कोई और वॉल्यूम कहीं और रेफरेंस है. तो अगर रेफरेंस है तो दिस वन विल बी योर इनिशियल वॉल्यूम V1. अच्छा जी, द पिस्टन इज पुश्ड. हाँ जी है, मैंने देख लिया फ़ौरन से कि वॉल्यूम ऑफ द गैस एट द न्यू पोजीशन. द पिस्टन इज पुश्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एंड हेल्ड इट टू द न्यू पोजीशन, विच मीन्स यू विल बी अप्लाइंग द फोर्स राइट हेयर. इट विल बी पुश्ड राइट हेयर इस तरह. तो आपके पास पिस्टन की एक न्यू लोकेशन और पोजीशन आ चुकी है बच्चों. अच्छा जी, the pressure of the gas increases from this value to this value. So that stands for what? This one is pressure 1 and the second one is pressure 2. Okay, temperature stays same. Okay, it indicates that there is a relation P1 V1 equals to P2 V2. Pressure is inversely proportional to volume. That Boyle's law you must have in your mind. Pressure is inversely proportional to volume by keeping temperature constant. So PV equals to constant. So that was the PV equals to constant wala concept. अच्छा जी, अब what you need to find is you need to find the second volume at the new position. Volume at the new position. तो बेटे बस simply just quickly I'll be just using the relation P1 V1 equals to P2 V2. What you need to find is V2. Then make it subject. इसके साथ extra क्या है? P2 divide हो जाएगा दूसरी साइड पे आके. V2 equals to P1 V1 divided by P2. Use the values right here. What will you get? V2 equals to, what was the pressure 1? Pressure 1 was what? 1 into 10 raised power 5. What was the pressure 2? Sorry, volume 1, 240 divided by, what is the next value? बेटे क्या है? P2 है. P2 क्या है? 1.4 times 10 raised power 5. Put these values into calculator and get your answer. जल्दी से मुझे बताएं बच्चों क्या आंसर आ रहा है आपका. It is the value which is on my calculator. It is V2. It's V2 1.71 into 10 raised power 2. ओके, तो मैं इसको इस आंसर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, इम्प्रूव कर लेता हूँ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस और 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली. तो बेटा ये 10 रेज़ पावर 2 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आंसर 171 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा. So again it will have 3 significant figures, so I'll convert it into what? 175 cubic centimeter. Okay, ये हर जगह पे ये यही सिचुएशन आ रही है, so please be clear about it. अच्छा, the area of the piston is this one when it's contact with the gas. This one is your A's value, the value of A. Calculate the force exerted on the piston by the gas on the piston. Piston is a solid object बच्चों, तो you need to find what? आपने क्या फाइंड करना है? फोर्स फाइंड करनी है जी बच्चों. क्या फार्मूला होता है इसका? हाउ टू फाइंड इट? व्हाट इज द फार्मूला फॉर प्रेशर फॉर सॉलिड? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया. अच्छा जी, अब यू नीड टू फाइंड फोर्स. बेटे फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर टाइम्स एरिया. ओके, व्हाट इज द प्रेशर? अब कौन सा प्रेशर यूज करेंगे? बिकॉज यू आर हैविंग टू वैल्यूज ऑफ प्रेशर राइट हियर, P1 and V1. So he has given you a hint that when the piston is held at its new position, which means new position was this one situation. So 1.4 into 10 is power 5. 1.4 into 10 is power 5 times area क्या है? 1.9 times 10 is power minus 3. Just do this calculation and tell me the answer बच्चों. Its answer is 266 Newton. But up to 2 significant figures, what I'll do? क्या करना चाहिए मुझे? The last value is greater than 5. तो what it should be? 270 Newton. Okay बच्चों? अच्छा जी, the next one. The distance moved by the piston is 0.036 meters. This one is the distance. The force exerted by the piston as it gonna move is this one, 220 Newton. Calculate mechanical work done by the piston and state the equation you're gonna use right here.
So what is the formula for work done? Simply work done equals to force times डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है बच्चों, तो ये उसकी डेफिनेशन भी मैं रिपीट कर देता हूँ. व्हाट डिफाइन वर्क डन स्टैंड्स फॉर व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस covered in the direction of applied force will be your what? Work done. अच्छा जी, simply use both these values. What is the value of force? 220 times what is the distance बच्चों? 0.036. just do this calculation and tell me the answer. That will be in your joules. 7.92. 7.92. अच्छा बेटा, अब इसमें देखें पॉइंट के बाद दो वर्ड्स हैं, तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस पे ये चीज परफेक्टली वैलिड आ रही है. सो आई विल नॉट जस्ट मेस विद इट. ओके. अच्छा जी, द नेक्स्ट पार्ट. स्टेट इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स व्हाई gases can be compressed but liquid cannot be compressed, and it's a 1 mark question. So again I'm reading it. State in terms of particles कि particles के accordingly gases compressible क्यों होती हैं and liquid compressible क्यों नहीं होते. Okay, so how to what should be its better answer? Gas molecules are present at considerable distance, are present at considerable distances, so can be compressed, while आपके जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड, बल्कि फ्लूइड तो नहीं कहेंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, while liquid particles are touching each other already. Liquid particles are touching each other, are touching or in contact. Okay बच्चों, so that's how you will be writing its answer. अच्छा जी, the next part. अच्छा जी, there is a large puddle of water on the road. The water in the puddle evaporates. Describe how evaporation from the puddle occurs. Use the idea about the particles in your answer. Okay बच्चों, you are having 10 seconds to think about its answer quickly. जल्दी से सोच लें, फिर मैं इसका आंसर लिखता हूँ. चलें जी. How evaporation from the puddle occurs. evaporation कैसे होती है मेरा बेटा? आप सबको पता है कि जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, evaporation के लिए जो important feature होता है, the particles that will have more kinetic energy will escape from the top surface of the fluid. Okay, that is the proper answer. The particles, लिख लें आप ही जल्दी से बच्चों. The particles with more kinetic energy, will escape from top surface of the liquid, from top surface of liquid, या escape कर दें या some ठीक है, सॉरी, टॉप सरफेस ऑफ द फ्लूइड कर दें या लिक्विड कर दें. ठीक है बच्चों, सो दैट्स अ कंप्लीट आंसर. आप इसमें एक एडिशनल वर्ड भी यूज कर सकते हो, कॉजिंग कूलिंग इन रिमेनिंग सोल्यूशन. सोल्यूशन का वर्ड ना यूज करें, इन रिमेनिंग कर दें. रिमेनिंग फ्लूइड के अंदर कूलिंग जनरेट करते हुए वो क्या करेंगे? दे गोना लीव. ओके. अच्छा जी, स्टेट मतलब आपने बताना है क्या वजह है, रीजन है, और उसकी एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेन वन चेंज इन द वेदर दैट कॉजेज द फास्टर रेट ऑफ एवेपोरेशन. अच्छा बच्चों, क्या क्या रीजंस हो सकती हैं वेदर के परस्पेक्टिवली और समथिंग लाइक दैट. तो एवेपोरेशन के ऊपर जो फैक्टर्स हैं वो ये टोटली 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है. एवेपोरेशन किस किस के ऊपर डिपेंड करती है बेटा? टेम्परेचर के ऊपर या हीट ऑफ द सराउंडिंग और इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है. दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? विंड स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, विंड स्पीड. ठीक है, और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है. ठीक है, और चौथा फैक्टर क्या था? सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करती है.
ठीक है, लार्जर द सरफेस एरिया लार्जर द evaporation will be, smaller the surface area smaller the evaporation will be. Now विद रिस्पेक्ट टू वेदर, तो बेटे वेदर के अकॉर्डिंगली आपके पास बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है कि इफ सन इज शाइनिंग दैट विल बी द हायर टेम्परेचर. ठीक है, मैं स्टेटमेंट में क्या लिख देता हूँ, जो विंड भी लिख सकते हो, विंडी से वेदर भी लिख, विंडी एटमोसफेयर भी लिख सकते हो, लेकिन मतलब अप टू यू, सारे आंसर्स ठीक हैं इस पे. तो आप कह सकते हो कि हायर हायर एयर टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग और समथिंग, और आप लिख सकते हो सनशाइन, सनशाइनिंग. ऑलराइट, अब हाउ इट विल बी इफेक्टिव. तो बेटे आप सबको पता है कि जो एटमॉस्फेरिक, जो आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर क्या करेगा, व्हाट विल बी द रोल ऑफ दैट टेम्परेचर. वो पार्टिकल्स को एनर्जी देगा. ठीक है, more the energy that particles will gain, that's the easy for them to, that's an easy situation for them to escape the surface. okay, तो हमने इसके अकॉर्डिंगली हमने चूज किया जी टेम्परेचर और सनशाइन. तो बेटी सनशाइन का मतलब क्या होगा कि particles will gain more energy is given to the, is given to the particles of fluid या लिक्विड कर दें to escape from top surface of the liquid, top surface of liquid. ठीक है बच्चों. अच्छा जी, the next one. A car on a dry road, a car is traveling on a dry road. The driver presses the brake. Okay, the car travels the distance before it comes to the rest. Okay, obviously that is talking about that braking distance and that stuff. The distance is named as braking distance. Perfect. State and explain how the braking distance changes when road is wet. अच्छा जी, रोड वेट है बच्चों, तो क्या होगा, रोड वेट होने की वजह से जो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो बढ़ चुका है, वो इंक्रीज हो चुका है. ठीक है मेरे बेटा, तो दैट हाउ इट विल बी इफेक्टिव फॉर दैट सिचुएशन. अगर वेट है, वेट रोड है, तो इट विल रिड्यूस द फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, दैट्स अ श्योर थिंग. अच्छा जी, अब हम इसको एक लाइन में एक एज अ रीज़न भी लिख सकते हैं. अच्छा, अब क्या करते हैं कि यू कैन से फ्रिक्शन वर्सेस आपका जो स्टॉपिंग है, स्टॉप हो रहा है आपका ऑब्जेक्ट. अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो इजीली स्टॉपेबल है, लेस टाइम में स्टॉपेबल है. अगर फ्रिक्शन कम है तो इट विल टेक मोर टाइम टू स्टॉप. ओके बच्चों, सो आपका डिस्टेंस भी इसी तरह ज़्यादा कवर होता चला जाएगा. सो व्हाट इज़ योर बेटर आंसर फॉर इट. इफ द रोड इज़ वेट then friction is reduced. If road is wet then friction reduces, या is reduced भी लिख सकते हो. अच्छा जी, अब because of this less friction, अच्छा अब because of this less friction, अच्छा लेस फ्रिक्शन किस किस के दरमियान की लेस फ्रिक्शन, बिटवीन रोड एंड टायर्स, बिटवीन रोड एंड टायर्स. क्या होगा, इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू स्टॉप द कार, या कार विल कॉमा कार विल टेक longer time while covering greater stopping distance. ठीक है मेरा बेटा, टाइम ज़्यादा लग रहा है तो वो रुकते हुए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा. सॉरी फॉर द वर्डिंग, आप इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखेंगे, मैंने असल में ज़रा कम जूम इन किया हुआ है, सो दैट्स वाई ये प्रॉपरली 3 लाइन्स के ऊपर नहीं आया. तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि क्या होगा आपका, वही फ्रिक्शन वाला फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे कि फ्रिक्शन की वैल्यू अफेक्ट होती है, दैट्स वाई स्टॉपिंग एंड ब्रेकिंग विल बी अफेक्टेड. अच्छा जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. अच्छा जी, the following figure shows through successive crusts of the water
waves approaching to the boundary. वाटर वेव्स हैं बच्चे, अप्रोच कर रही हैं बाउंड्री की तरफ. अच्छा, अब आपने क्या करना है? The speed of the wave in region B is slower than the speed of wave in region A. मतलब B पे स्पीड की वैल्यू क्या है? कम है. तो स्पीड की वैल्यू बच्चों कम किस जगह पे होती है? शैलो मीडियम में होती है. आई हैव टोल्ड यू, एज फॉर शैलो एज फॉर स्लो. स्लो, दिस वन इज स्लो मीडियम. एंड ये आपका रीजन ए कौन सा बेटा? फास्टर है. फास्टर का वर्ड भी यूज़ करते हैं. और इसके लिए डीप मीडियम का वर्ड भी यूज़ करते हैं, लेस डेंस का वर्ड भी यूज़ करते हैं. अच्छा जी, ड्रॉ द क्रेस्ट्स ऑफ द वेव्स इन रीजन बी. तो बेटे बी के अकॉर्डिंगली आपने अपनी वो जो सिचुएशन सिनेरियो है उसको डिस्कस करना है यहाँ पे. अच्छा, अब इसमें इसको कैसे लेके चलना है? सबसे पहले आपकी ये डायरेक्शन ऑफ वेव है. काइंड ऑफ टेक्निकल क्वेश्चन नज़र आ रहा है लेकिन इतना ही आसान है. तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है? अपनी वेव को कंप्लीट कर लेना है. अपनी वेव को कंप्लीट करने का आसान तरीका ये है कि जस्ट कंटिन्यू दिस वेव. यहाँ तक आपकी वेव स्ट्रेटली आ गई. ठीक है बच्चों, अभी मैं इसके क्रस्ट की बात नहीं कर रहा, अभी मैंने अपनी वेव को यहाँ पे पहुँचाया है. अच्छा, मेरी वेव अप्रोच कर गई है जी मेरी बाउंड्री ऑफ द, उस बाउंड्री को जहाँ तक आपका जो है वो, जिससे ऑनवर्ड आपकी बेंडिंग होनी है और समथिंग लाइक दैट. बेटे सबसे इंपॉर्टेंट काम इस जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ वेव है इसके ऊपर नॉर्मल ड्राइंग है आपका. इंपॉर्टेंट काम है आपका. आप इस पर नॉर्मल ड्रॉ कर लोगे. अच्छा जी, लाइक दिस. अब सर आपने बताया था कि जब वेव डीप मीडियम से शैलो मीडियम में मूव करती है तो इट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल. इट विल मूव व्हाट? टूवर्ड्स द नॉर्मल. डीप से शैलो में टूवर्ड्स द नॉर्मल. अब शैलो से डीप में अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है बच्चों, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, होपफुली अब रिवाइज हो गया होगा. तो आपकी वेव बेटे कंटिन्यू होगी, किस साइड पे जाएगी अब ये आपने डिसाइड करना है. बी इज़ अ शैलो और स्लोअर मीडियम. तो बेटे अगर हम फॉर एग्जांपल अगर कंटिन्यू रखें तो हमारी ये जर्नी है स्ट्रेटली, इस तरह वेव को जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्लो हो रही है. तो स्लो स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल. नॉर्मल की तरफ मूव करेगी तो इस तरह की वेव बनेगी. आपके पास स्केल्स होंगे, आप प्रॉपरली इसको ड्रॉ कर लीजिएगा. ठीक है, तो ये आपकी डेविएशन होगी अपने पाथ से. अब बेटा जब आपकी वेव डीप से शैलो मीडियम में जाती है, स्लो मीडियम में जाती है, तो सिर्फ स्लो नहीं होती. तो स्लो के साथ साथ और क्या क्या फीचर्स आते हैं? आपकी वेवलेंथ की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है. और व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी स्टेज सेम बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सोर्स ओनली. इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर आपकी जो अपर साइड है यहाँ पे वेवलेंथ इतनी है, लार्जर है, फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर आ रही है, तो मेरे बेटा इन दिस सेकंड मीडियम जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, यहाँ पे आपकी जो वेव्स हैं, आपके जो वेव फ्रंट्स हैं, उनका क्रस्ट टू क्रस्ट डिस्टेंस है, द स्पेसिंग बिटवीन बोथ कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ्स क्या हो जानी चाहिए? इट विल बी रिड्यूस्ड, कम हो जानी चाहिए. ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपने यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसको क्या कर लेना है, इसको सॉरी बेंड करके ना आपने इस तरह लाइक दिस, तो ये डिस्टेंस कम हो जाना चाहिए आपका. ठीक है, एटलीस्ट उस डिस्टेंस से कम हो जाना चाहिए. तो यू मस्ट हैव अ स्केल. तो मेरा बेटा प्रॉपरली आपकी ना ये वैल्यू कंसिडरेबली कम होनी चाहिए. ये जो नीचे आपकी ये जो इस पोर्शन की वैल्यू है दैट शुड बी रिड्यूस्ड, प्रॉपरली रिड्यूस्ड होनी चाहिए. मैं आपको समझाने के लिए इस पर इतनी वर्किंग कर रहा हूँ, अब एक्स्ट्रा चीज़ें मैं इसे रेज कर दूंगा. ठीक है मेरा बेटा, तो दैट्स हाउ यू विल बी गेटिंग 3 मार्क्स. अंडरस्टूड. लेकिन नॉर्मल ड्रॉ करना है, उसको लेबल करना है. ये आपकी वेव डायरेक्शन है, इनको प्रॉपरली ड्रॉ करना है. ठीक है मेरा बेटा, अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन है तो प्लीज़ जस्ट आस्क मी राइट हेयर. आपकी वेवलेंथ की वैल्यू कंसिडरेबली यहाँ पे आपके पास स्केल्स होंगे तो आप प्रॉपरली इंशाल्लाह इसको प्रॉपरली ड्रॉ कर लोगे, तो उससे ये आपको ना ज़रा क्लियर नज़र आएगी. ठीक है बच्चों. अच्छा जी, स्टेट द वेव इफेक्ट दैट अकर्स व्हेन वेव क्रॉसेस द बाउंड्री बिटवीन रीजन ए एंड बी. जी मेरा बेटा, क्या आंसर होगा इसका? अच्छा उत्तर, हम ऐसे क्वेश्चंस में आके ना गलती करते हैं. जैसे उमर बेटे आपने एक्सप्लेन किया मुझे कि सर आई विल बी राइटिंग दैट एक्सेट्रा, वो फिनोमेना जो मैंने ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया आपने वो यहाँ पे मुझे ओरली बता दिया है. ठीक है, लेकिन मेरा बेटा व्हाट इज़ द एक्चुअल फिनोमेना? वो कहता है कि स्टेट द वेव इफेक्ट दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय यू गाइस. आपकी वेव जब आप कह लें कि डीप मीडियम से शैलो मीडियम में जा रही है, तो व्हाट इज द फिनोमेना विच यू आर ऑब्जर्विंग राइट हियर? आप
रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व कर रहे हो, रिफ्लेक्ट, ये आपके लिए हिंट है, रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व कर रहे हो, डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो बेटे? तो लेस डेंस से डेंस मीडियम में जाती है वेव की, वेव जाती है जब ट्रैवल करती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, पहला ऑब्जेक्टिव। सेकेंडली स्पीड रिड्यूसेस, सेकेंड एम्पलीट्यूड रिड्यूसेस, थर्ड फ्रीक्वेंसी स्टेज सेम। ओके बेटा, तो व्हाट इज दैट फिनोमेना नेम्ड एक्चुअली? इट सिंपली नेम्स एट वाज एट व्हाट, सॉरी, रिफ्रैक्शन। तो बेटे आप रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व कर रहे हो उमर। He is just asking to write the name of that effect. You are not supposed to, मेरे बेटा, write down all the story which you have done precisely previously. Okay. अच्छा जी। अब उसके बाद nextly, light can be totally internally reflected when striking the boundary between two different regions. Perfect. Absolutely, it's being happened. Not right here, but it's a normal phenomena. अच्छा जी, the two conditions necessary for the total internal reflection. Yes, these are the two requirements of the total internal reflection. क्या होनी चाहिए जी बच्चों? होपफुली आपने ठीक लिख ली होंगी ऑलरेडी। अच्छा जी, अब व्हाट इज द फर्स्ट और मेन कॉज कि आपकी जो मीडियम की चेंज है वो फर्स्टली योर वेव मस्ट बी पासिंग, या वेव या लाइट लाइट सॉरी कह रहा हूँ, आपकी वेव मस्ट बी कमिंग फ्रॉम मोर डेंस टू लेस डेंस मीडियम। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी। या आप अगर आप इसको स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंगली हम डिस्कस कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट रीजन और फर्स्ट मीडियम शुड बी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम। मतलब डेंस से लेस डेंस में, शैलो से डीप मीडियम में आप लोग जा रहे हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे हमने प्रीवियसली भी वो इस तरह का एक ग्राफ बना के, सॉरी ग्राफ कह रहा हूँ, रे डायग्राम ड्रॉ करके मैंने आपको बताया था कि ये आपकी रिफ्रैक्शन, फिर आपका सेकेंडली नेक्स्ट आते आते जी ये 90 डिग्री पे हो गई थी रिफ्रैक्शन। अब उसके बाद इससे इस एंगल से हमने इसको बढ़ाया था तो इट वाज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। डू यू रिमेंबर दैट फिनोमेना? दैट फिनोमेना विल बी वैलिड राइट हियर एज वेल, कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन योर रे विल बी कंप्लीटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। तो फर्स्ट पॉइंट विल बी व्हाट? एंगल ऑफ, sorry, angle of incidence must be greater than critical angle। अच्छा जी, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए बेटा। क्रिटिकल एंगल बाय इटसेल्फ क्या होता है? दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। अच्छा जी, नाउ जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है, या स्पीड ऑफ लाइट स्लो होनी चाहिए, या रे मस्ट बी, सॉरी, रे मस्ट बी कमिंग फ्रॉम या मूविंग फ्रॉम डेंस टू, डेंस आर, अब कर लो शैलो टू डेंस टू लेस डेंस मीडियम, लेस डेंस मीडियम, लेस डेंस मीडियम, या आप कह लो कि इसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो मेरा बेटा? डीप यूज़ कर सकते हो, डीप मीडियम यूज़ कर सकते हो। और इसके लिए फर्दर एक और कंडीशन भी यूज़ की जाती है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है इन फर्स्ट मीडियम, आप फर्स्ट मीडियम, दैट शुड बी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, सेकेंड मीडियम। वैसे जनरली बेटे आपके आइडिया के लिए लिख रहा हूँ, वैसे स्पीड को सी से लिखते हैं, और वी सम जब भी मीडियम की बात करते हैं तो वो वी से डिनोट हो जाता है, वी से रिप्लेस हो जाता है। अच्छा जी, द नेक्स्ट वन, स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर फॉर ट्रांसमिटिंग हाई स्पीड ब्रॉडबैंड। अच्छा, क्या रीज़न हो सकती है बच्चों? ये तो बहुत बहुत ईजी है। सबसे पहले आप क्या कह सकते हो कि हाई रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन होता है इसके अंदर जी। what are the two advantages? The first advantage is what? High speed of data transmission, या higher rate of data transmission. And what is the second one बेटे? आप इसके लिए क्या सकते हो कि it can carry the larger amount of data or information or something, it's secure, या इसके अंदर जो पावर लॉस है या सिग्नल लॉस है बहुत कम होने के बराबर है। वेरी, या आप लिख सकते हो सिक्योर एंड स्मॉलर, या वेरी स्मॉलर
पावर लॉस और डेटा लॉस। ओके, अच्छा बेटा, अब इस तरह के क्वेश्चंस में ना जैसे आपने ऊपर भी देखा है, ऊपर वाले क्वेश्चन में और दिस पार्ट प्रिसाइजली आई हैव एडेड टू रीजंस इन वन पार्ट। क्यों? व्हाट इज द रीजन? आपके माइंड में क्या चल रहा है, मैंने ऐसा क्यों किया है? द बेटा सिंपल रीजन इज दैट कि अगर उसकी मार्किंग स्कीम से रिजेंबलेंस नहीं हो पा रही देन आई शुड नॉट बी लूजिंग द मार्क्स। ओके, तो मैं आपने भी ऐसे ही करना है कि जब कभी आपने देखना है कि यार इसमें कुछ एक्स्ट्रा डाटा आ सकता है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज बस आपने सिंपली उसके अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर देना है, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करके, शॉर्ट करके, समथिंग लाइक दैट। बेटा क्वेश्चन नंबर 7, आई विल बी सॉल्विंग इट टू क्विक बिकॉज इसकी वीडियो ऑलरेडी हमने वो पोस्ट की भी है उस पर, यूट्यूब पे भी आपने भी होपफुली सब नहीं देख ली होगी, नहीं देखी तो इट्स ऑल राइट, फिर देख लीजिएगा बच्चों। अच्छा, सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन एसी सप्लाई विद टू लैंप्स, लैंप इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, लैंप पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और यहाँ पे एसी सप्लाई की बात हो रही है। जस्ट ड्रॉ इट सर्किट डायग्राम। बेटे सबसे पहले आपका अल्टरनेटिंग करंट सोर्स इस तरह का के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑलराइट, अब उसके बाद आपने पैरेलल में क्या लगा दिए जी, दो लैंप्स लगा दिए हैं। दिस वन इज लैंप वन एंड दिस वन इज लैंप टू। ठीक है बेटे, यू गाइस मस्ट बी हैविंग द स्केल्स, तो प्रॉपरली आपने ना अपने स्केल्स के अकॉर्डिंगली इसको सही नीट तरीके से ना ड्रॉ कर लेना है। ओके, सो दैट विल बी एन ईजी टास्क फॉर यू। तो ये मुफ्त के फ्री के 2 मार्क्स हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, द ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जी बेटा, ईएमएफ क्या होती है? दैट इज what do you mean by EMF? That is the energy supplied by the battery to unit charge to move across the whole circuit. ये सर्किट की प्रॉपर्टी होती है कि जो आपके चार्जेस मूव करते हैं बैटरी के अंदर, उनको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है बाय द सेल पर यूनिट चार्ज, नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब उसके बाद उसने क्या दे दिया जी, पावर सप्लाई इज 230 वोल्ट्स, मतलब आपको ईएमएफ की वैल्यू गिवन है विच इज 230 वोल्ट्स। अच्छा जी, when connected to our 230 पावर सप्लाई, आपकी जो ईएमएफ की वैल्यू, इट्स ऑल राइट, the resistance of the first lamp is, lamp 1 is 1200 ohm and the resistance of the second lamp is 800 ohm. This one is between 1200 ohm and the second one is 800 ohm. All right, what is the current in 800 वाला लैम्प, 800 ohm resistance वाला लैम्प? सो सबसे पहले करंट के लिए क्या क्या फार्मूले हैं, पी इक्वल टू आई वी, यहाँ पे पावर का जिक्र ही नहीं है तो हम वो यूज़ नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट वन इज ओम लॉ, वेरी इजी, वी इक्वल टू आई आर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी राइट हियर विच इज गिवन टू यू, 230. I'm just telling you, writing the raw data will not get you the marks, but it will help you to just select your formula. आप formula select कर लोगे इससे easily. So what was the ohm law beta? V equals to I times R, sorry, I times R, okay, I times R. अच्छा जी, the next one, what do you need right here? I need current, I equals to V divided by R. Okay, what is the V right here? 230. What is the R right here? 800. All right, so what will you get बच्चों? You will be getting 0.29 ampere. Okay, that is your answer, 0.29 ampere. करंट है ना, तो करंट का यूनिट एम्पेयर होता है। ओके बच्चों, सो एनर्जी इक्वल्स टू व्हाट, I times V times T, and you need to find for the 800 ohm वाला लैम्प। ओके, फॉर द दैट यू कैन से लैम्प या जो लाइट जिसकी आप बात कर रहे हो। अच्छा जी, आई थिंक वीडियो वाज स्टॉप बट होल ऑफ दिस क्वेश्चन वाज सॉल्व्ड इन अनदर वीडियो, तो बेटा आप उधर भी देख सकते हो। अच्छा जी, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट राइट हेयर? करंट की वैल्यू बेटे कितनी है, अभी अभी आपने फाइंड की है, 0.29 एम्पेयर। 0.29 टाइम्स वी, वोल्टेज कितना था ऊपर हमने लिखा है 230 टाइम्स टी, व्हाट इज टाइम? अब बेटा प्रीवियसली हमने एक चीज़ पे बात की थी कि टाइम शुड ऑलवेज बी इन सेकेंड्स, एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंगली पीछे एक क्वेश्चन के अंदर, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम टाइम की वैल्यू को कन्वर्ट नहीं कर रहे। क्या रीज़न है इसकी? व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रीज़न? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें योर आंसर शुड बी इन आवर्स, ये आवर्स में आ जाएगा बेटा, दैट इज़ योर टाइम, इट विल बी इन द आवर्स। और ये आपकी P इक्वल्स टू आई वी, ये आपकी पावर की वैल्यू आ रही है जो कि वॉट में आ रही है। ओके बच्चों, तो जस्ट मल्टीप्लाई देम टू गेट द आंसर। आपका जो आंसर आएगा, प्लीज़ कैलकुलेट इट, उमर एंड ऑल, प्लीज़ कैलकुलेट करके मुझे वैल्यू बताएं बच्चों।
एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? जी बच्चों, आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल बी गेटिंग 333.5, 333.5। ये वॉट आवर्स में आ रही है, आप वॉट आवर्स, बट व्हाट डू यू नीड? यू नीड किलो वॉट आवर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू डिवाइड इट विद 1000। सो व्हाट विल यू गेट राइट हियर आफ्टर डिवाइडिंग विद 1000? 0.33 किलो वॉट आवर। ओके बच्चों, सो दैट्स हाउ यू विल बी जस्ट getting the answer in kilowatt hour, 0.33। ओके यार, आप लोग कर रहे हो ना साथ साथ, होपफुली आप भी इसको सॉल्व कर रहे होगे, और प्लीज़ इसको साथ साथ सॉल्व करिएगा ताकि आपको आपका वो पता चलता जाए। अच्छा जी, अब द नेक्स्ट वन। कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू लैम्प्स। बेटे आपने इसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस के लिए आप सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो सीक्वेंस है वो क्या है। आपकी जो ये कॉम्बिनेशन कौन सा है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप क्या क्या रिलेशंस यूज़ करते हो? चलें, लेट मी ड्रॉ क्विक सर्किट राइट हियर फॉर यू गाइस। इधर इस तरह आप यूज़ कर लें इसको। ठीक है, मैं रफ सा एक स्केच बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, लाइक दिस। अच्छा, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है बेटे। पैरेलल कॉम्बिनेशन है आपका। फर्स्ट वन वाज आई थिंक 1200 एंड सेकंड वन वाज व्हाट, 800 ओम। अच्छा, अब इन दोनों के अंदर जो दो वैल्यूज़ आपको गिवन हैं, दो वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं, तो उन दो वैल्यूज़ को कैसे ट्रीट करते हैं इन टर्म्स ऑफ पैरेलल सर्किट? अगर सीरीज़ की बात कर लेता हूँ पहले, क्योंकि वो सीरीज़ यहाँ पे नहीं है, तो सीरीज़ विल बी लाइक दिस। तो उस कंडीशन में आप कंबाइंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हो? R1 प्लस R2, मतलब दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देते हो। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो बेटे पैरेलल कॉम्बिनेशन के दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अच्छा, अब एक तो मेथड ये हो गया। अब इसमें आपने 1/R1 करके फिर सिंप्लीफाई करना है एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। एंड द सेकंड वन इज कंबाइंड रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ओवर सम। प्रोडक्ट ओवर सम, ये प्रोडक्ट ओवर सम ना भी लिखे तब भी ठीक है, डायरेक्टली आप फार्मूला लिख लें, मतलब इसकी वैल्यूज लिख लें। प्रोडक्ट स्टैंड फॉर व्हाट? R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय सम R1 प्लस R2। सो पुट दीज वैल्यूज। तो आपको 800 टाइम्स 1200 डिवाइडेड बाय 800 प्लस 1200। तो व्हाट विल यू गेट राइट हियर? आपकी सॉरी आरसी कंबाइंड रेजिस्टेंस कितनी आएगी बच्चों? इट विल बी डायरेक्टली 480 ओहम्स। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। अब यहाँ पे आप जो भी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होगे वो 1/R के इक्विवेलेंट आएगी। ठीक है, तो फिर उसको आपको R चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, आपको इन्वर्स ऑफ द रेजिस्टेंस नहीं चाहिए। तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, आपको इन वैल्यूज़ को इन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑल दो यहाँ पे भी 480 ही आ रही है, लेकिन व्हाट यू नीड टू डू इज़ यहाँ पे हम डायरेक्टली कर लेते हैं, तो दैट्स अ बेटर ऑप्शन और इजी ऑप्शन फॉर अस। ओके बच्चों। अच्छा जी, द नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग दैट स्टेट व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड। बेटे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर you will feel the you will experience the magnetic force। ओके, मैग्नेटिक फोर्स को आप इफेक्ट को, मैग्नेटिक इफेक्ट को फील कर सकते हो। चलो इसकी एग्जाम डेफिनेशन लिख लेते हैं। रीजन अराउंड द मैग्नेट भी लिख सकते हो, बट इट्स ऑल राइट। रीजन in which magnets experiences the force। मैग्नेटिक फोर्स की टर्म भी यूज़ कर सकते हो, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। या एक और डेफिनेशन भी आप इसकी लिख सकते हो कि रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर वी कैन फील इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, द नेक्स्ट वन, जो बेटा दिखने में तो काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन नज़र आता है, बट एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हम सॉल्व करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज figure 8.1 shows the ammeter connected with a coil wound in a thin plastic cylinder। ये आपके पास बेटा जी कॉयल है और ये आपका एम मीटर है जो कि इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ऑल राइट। अ स्मॉल ट्रॉली इज प्लेस्ड इन अ कर्व ट्रैक विच पासेस थ्रू द दिस सिलेंडर। ये जो ट्रॉली है इसकी बात कर रहा है, ये इसके अंदर से इस वे में यहाँ से गुजर के इधर तक जाएगी बच्चों, और वहाँ से इसने वापस आना है। ऑल राइट, आई हैव मेंशन्ड इट्स ट्रैक इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा जी, अब क्वेश्चन क्या है? द ट्रॉली इज रिलीज्ड फ्रॉम द पोजीशन
ट्रॉली को बेटे जब आप यहाँ से इस पोजीशन से रिलीज कर दोगे, इस पोजीशन से जब इसको पुश कर दोगे या छोड़ दोगे, तो क्या होगा? इट ट्रेवल्स थ्रू द कॉइल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये राइट से लेफ्ट साइड पे जाएगी। ऑल राइट, मतलब इस लोकेशन से यहाँ पे इस लोकेशन तक जाएगी। ऑल राइट, परफेक्ट, मतलब इस साइड पे जाएगी, इसलिए इसको मेंशन कर दिया। अच्छा जी, द नेक्स्ट वन, द ट्रॉली ट्रेवल्स बैक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट हैज लोअर मैक्सिमम स्पीड। ओके, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट से लेफ्ट जाते हुए नहीं बल्कि वापस आते हुए ट्रैक पे इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। उसकी रीजन पूछेगा फॉर श्योर। द प्लास्टिक सिलेंडर डज नॉट अफेक्ट एनी मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी एनी मैग्नेटिक फील्ड। परफेक्ट, वो उसमें रोल प्ले नहीं कर रहा। अब क्या होगा? अ मैग्नेट इज फिक्स्ड इन द टू द ट्रॉली। ये जो ऊपर इसके पड़ा हुआ है ना नॉर्थ एंड साउथ बेटे, ये मैग्नेट को ट्रॉली के ऊपर प्लेस किया हुआ है। अच्छा जी, state why there is a lower maximum speed when a trolley travels back from left to right side। अच्छा मेरा बेटा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आते हुए आपकी जो ट्रॉली है उसकी जो स्पीड है उसमें जो कमी वाक़या होती है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट? तो बेटा बहुत इजी, एक सिंपल सा मेरे माइंड में जो चीज़ चल रही है वो ये है कि देयर इज़ अ फ्रिक्शन बिटवीन जो सरफेस है एंड टायर्स ऑफ द ट्रॉली है। तो फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? उसकी स्पीड को रिड्यूस कर देगा। पहला ऑप्शन तो ये हो गया और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक ऑप्शन है, परफेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन, क्या कोई और ऑप्शन भी हो सकता है? तो बेटे हमें एक चीज़ पता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल इंड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन इंड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल। तो जैसे ही ये मैग्नेट है, चलें लेट मी ड्रॉ इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे वर्क करेंगी या कैसे रोल प्ले करेंगी इसके अंदर। सबसे पहले मिडल वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ से अपवर्ड आपकी जो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेटे, ये मल्टीपल लाइंस ड्रॉ कर सकते हो आप, लेकिन मैं इसको ज़्यादा ड्रॉ नहीं कर रहा। नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही हैं एंड साउथ पोल की तरफ जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि आई हैव जूम्ड इन इनफ, तो इतना ज़्यादा ड्रॉ नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब आप एक और लाइन भी इसके सर्कुलर पैटर्न भी आप इसका ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब होगा क्या जब आप इसको इसमें रिलीज करोगे ना, तो इट विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन टूवर्ड्स इट ऑब्वियसली। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल को कट करेंगी, तो कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस कर देंगी। करंट इंड्यूस होने की वजह से ये एम मीटर हमें रीडिंग शो करेगा। ठीक है, एम मीटर विल शो द रीडिंग व्हेन एवर योर चेंज ऑफ फ्लक्स विल बी सीन। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इस कॉइल की यू कैन से वायर की वो जो कर्ड पैटर्न है, सर्कुलर पैटर्न है, उसके अंदर से गुजरेगा, तो क्या करेगा? उसके अंदर क्या इंड्यूस कर देगा मेरा बेटा? इट विल इंड्यूस व्हाट? इट विल इंड्यूस द यू कैन से करंट इन इट। ओके, और बेटा हमने थोड़ा टाइम पहले लेंस लॉ पढ़ा है। लेंस लॉ आपको क्या बताता है? लेंस लॉ विल टेल यू व्हाट? लेंस लॉ आपको ये बताता है कि आपका जो इंड्यूस करंट होगा यहाँ पे, ये बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जो आपका ये जो करंट फ्लो करेगा ना, ये इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। ठीक है, वही वो सोर्स हमेशा अपनी बनाई हुई चीज़ को अपोज करता है, दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। अच्छा अच्छा, चलें नेक्स्ट पार्ट की भी बात करते हैं अभी, लेकिन चले पहले इसका आंसर प्रॉपरली लिख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दो आंसर्स पॉसिबल हैं, लेकिन अभी मैं एक आंसर लिख रहा हूँ। अच्छा जी, फ्रिक्शन बिटवीन ट्रॉली एंड टायर्स, या बल्कि ट्रैक कर लें, सॉरी ट्रैक reduces the maximum speed of trolley। You will be getting the 1 mark on writing this reason। अच्छा, अब in terms of all right, in terms of current की situation में हम इसको बेटा कैसे लिखेंगे? बेटा the induced current in a coil generates its own magnetic field, perfect, in the direction that opposes the magnetic field of the magnet। मतलब क्या? अब चलिए मैं वो ओरली बता रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू राइट दैट रीज़न देन यू कैन आल्सो राइट। अगर वो लिखा तो 2-3-4 मिनट और लग जाएंगे। मैं इसको दोबारा रिपीट करूँ कि अगर यहाँ से करंट इंड्यूस हो रहा है ना, ये करंट मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल करंट की डायरेक्शन ऐसे है अपवर्ड, एक एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा। अच्छा, करंट इंड्यूस होगा तो बेटे करंट इंड्यूस होने की वजह से जो आपकी कॉइल है इसके अराउंड भी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी ना। और लेंस लॉ हमें क्या बताता है कि ये अपनी कॉज को यू कैन से रिड्यूस करेगा, वो रिपेल करेगा। फॉर एग्जांपल
अगर आपके पास एक ये कॉयल है, मैं यहाँ पे आपको कॉयल ड्रॉ करके दे देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे आपका ये एमीटर लगा हुआ है, ठीक है, ये एमीटर लगा हुआ है। अब अगर आप इसके करीब मैग्नेट को लाते हो, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था पढ़ाते हुए कि अगर आप इसके करीब मैग्नेट को लाते हो तो इसके अंदर करंट तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास करेंगी, तो करंट तो इसके अंदर इंड्यूस होगा ही होगा, लेकिन इसके जो पोल्स हैं, जो इसकी कॉर्नर्स हैं, उन पे ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस हो जाएंगे। ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस होने का मतलब क्या होगा बेटा कि ये अगर फॉर एग्जांपल नॉर्थ इस साइड से आ रहा है तो इस साइड पे नॉर्थ और इस साइड पे साउथ इंड्यूस हो जाएगा, और वो इसकी सोर्स को यू कैन से रोकने की कोशिश करे, सॉरी इसकी आउटसोर्सिंग को, या इसकी यू कैन से वो जो एक पुल होगा ना, इसको ऑपोजिट पुल देगा ताकि इसकी स्पीड स्लोज डाउन हो जाए। सो व्हाट इज योर प्रॉपर आंसर, व्हाट शुड बी योर प्रॉपर आंसर फॉर इट? The induced current which is being generated in the coil will have its own magnetic field बच्चों, और उसकी magnetic field will be oriented in such a way that it will oppose the magnetic field of this magnet, okay? और जब ये मैग्नेट आपका यहाँ पे, बस इतनी सी रीज़न आप इसको बेशक लिख लीजिएगा, जब ये मैग्नेट आपका यहाँ पे पहुँचेगा बेटा, इसकी राइट साइड साउथ और लेफ्ट साइड नॉर्थ होगी ना, मतलब इसी तरह होगी ना, पोलैरिटी यहाँ पे तो चेंज नहीं होगी। सो ये इसकी जो बैक मूवमेंट है अभी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो यू कैन राइट दैट रीज़न एज वेल, ओके। द इंड्यूस करंट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लिखने की बजाय हम इस पे टाइम लगा रहे हैं कि द इंड्यूस करंट इन द कॉइल विल जनरेट इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। ये जो करंट आपका जनरेट हुआ है इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये कैसे होगी, ये आपके इस मैग्नेट को इस मैग्नेट के अगेंस्ट पोल बनाएगी। नॉर्थ है तो इस साइड पे नॉर्थ बन जाएगा, उस साइड पे साउथ पहुंच जाएगा, एक जर्नल एज एन एग्जांपल। तो बेटा ये क्या करेगा, इसके पुल को, इसके मूवमेंट को अपोज करने की कोशिश करेगा, ओके। और जब इसको अपोज करने की कोशिश करेगा ऑब्वियसली उसकी स्पीड के ऊपर तो ऑब्वियस सी बात है कि एक इफेक्ट तो लाजमी पड़ता है, उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है, ठीक है मेरा बेटा। दैट्स हाउ इट विल बी वर्किंग। अच्छा जी, द नेक्स्ट पार्ट, एक सेकेंड मुझे जी बेटा, नेक्स्ट पार्ट इज़ अगेन टू सिंपल। आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको क्या बता रहा है, उसमें पूछा क्या जा रहा है, इट्स शोइंग द क्लोजअप व्यू ऑफ द एम मीटर। आपको यहाँ पे क्लोजर व्यू ऑफ एम मीटर नज़र आ रहा है बच्चों। अच्छा, अब इस एम मीटर के अंदर क्या हो रहा है, एज द ट्रॉली इंटर्स द कॉयल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ट्रॉली राइट टू लेफ्ट जाते हुए जब कॉयल के अंदर इंटर होती है बेटा, यहाँ पे इस पोर्शन की बात कर रहा है, इस पोर्शन की बात कर रहा है मिडल में। तो द एम मीटर नीडल्स डिफ्लेक्ट्स टू द लेफ्ट साइड। एम मीटर की रीडिंग बच्चों क्या हो जाती है, लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्ट हो जाता है, ऑल राइट, एंड देन रिटर्न्स टू जीरो। स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी चेंज टू द डिफ्लेक्शन ऑन द एम मीटर एज द ट्रॉली इंटर्स द कॉइल व्हेन मूविंग बैक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जी बच्चों, थिंक अबाउट इट कि आपकी ट्रॉली का लेफ्ट टू राइट आने की जर्नी में एम मीटर के ऊपर क्या डिफ्लेक्शन शो की जा सकती है, क्या होनी चाहिए, कोई एक्सपेक्टेड क्या सिनेरियो आपके माइंड में चल रहा है। यू कैन थिंक अबाउट इट, यू कैन हैव अ 10 to 15 seconds गैप फॉर इट। तो मेरा बेटा सॉरी, एक बार अच्छा, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो, क्वेश्चन नहीं मैं समझ करता आया। हूँ, मैं करता हूँ बेटा। अ वेरी सिंपल सिचुएशन कैन बी, जो आपकी एक्सप्लेनेशन इसके अंदर बन सकती है कि डिफ्लेक्शन, आप एम मीटर की डिफ्लेक्शन जब इंटर हो रहा था ट्रॉली में। अच्छा चलिए, लेट मी रीड इट अगेन फॉर यू। स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी चेंज टू द डिफ्लेक्शन ऑन द एम मीटर एज द ट्रॉली इंटर्स द कॉयल एज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट आते हुए क्या क्या पॉसिबल एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं, क्या हो सकता है। तो बेटा एम मीटर के ऊपर, तो बेटे एम मीटर की डिफ्लेक्शन पे कोई खास इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वही हैं जो इसके अंदर से पास कर रही हैं। अगर आप उसको रोक देंगे, मिडल में स्टॉप कर देंगे, फॉर एग्जांपल इफ आई विल बी स्टॉपिंग द ट्रॉली राइट हेयर एट द मिडल, तो भी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डिफ्लेक्शन तब शो की जाती है, डिफ्लेक्शन तब शो नहीं की जाती, एक्चुअली होती है जब ट्रॉली की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ट्रॉली के ऊपर लगी हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड दिस, ये जो कॉइल है इसके अंदर करंट गुजरने की वजह से जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, ओके। सो व्हाट शुड बी योर प्रॉपर आंसर? देयर इज नो चेंज इन व्हाट, देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन, ओके, या यू कैन से डायरेक्शन विल बी स्टिल
या वो जो आपकी एम मीटर के ऊपर डायरेक्शन है वो अनअफेक्टेड रहेगी, या अगर होगी भी तो बहुत स्मॉलर डिफ्लेक्शन होगी। ओके, या चलें इसका प्रॉपर आंसर मैं आपको लिखवा देता हूं। स्मॉलर या लेस चेंज इन ईएमएफ या वोल्टेज, लेस ईएमएफ आर पोटेंशियल डिफरेंस आर, वोल्टेज विल बी, या वोल्टेज आप करंट भी कर सकते हो, आई विल बी इंड्यूस्ड, will be induced in a coil, induced in a coil। और वो कॉइल के अंदर जो इंड्यूस होने वाला ईएमएफ है बेटा वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि एम मीटर के अंदर ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करे। ओके, सो देर इज अ देर इज अ स्मॉलर चेंज ऑफ फील्ड लाइंस, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड एज अ रिजल्ट there will be very minute या very smaller या zero deflection भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। there will be smaller deflection observed। ओके, ठीक है मेरा बेटा। सर ये वापस स्पीड स्लो होने की वजह से स्मॉलर जी ईएमएफ कम होगा। होता है। अब बेटे ज्यादा, ये आपको ना मैंने कुछ फैक्टर्स पढ़ाए थे कि 3 से 4 फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर आपकी ये फोर्स इंड्यूस या ईएमएफ इंड्यूस डिपेंड करती है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल बढ़ा दें, स्पीड ऑफ दैट ट्रैवलिंग बढ़ा दें, स्पीड ज़्यादा होगी, या इसके अंदर करंट की वैल्यू बढ़ा दें, और आई थिंक यही थे, या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ कर लें। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर आपकी ये इंडक्शन ऑफ करंट और इंडक्शन ऑफ या इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस वोल्टेज की वैल्यूज़ डिपेंड कर रही होती हैं। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ मोर प्रिसाइजली डिपेंड कर रही होती है। अगर आप इसको क्वेश्चन कैन बी मॉडिफाइड, आप इसमें कह सकते हो कि सर इफ ट्रॉली इज मूविंग टू मच क्विकली एंड फास्टली विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी, देन मैक्स यहाँ पे आप लैंप लगा लो तो बेटे लैंप विल बी शोइंग मैक्सिमम, वो बार बार ब्लिंकिंग शो करेगा। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइंस दोनों साइड पे, इधर से आते हुए भी और इधर जाते हुए भी, ये दोनों डायरेक्शन में इसको कट करेंगी कॉन्टिन्यूसली। तो इस कटिंग जर्नी की वजह से मैंने आपको यहाँ पे यही बताया ना कि अगर ये जो मैग्नेट है ये कॉइल के अंदर मूव होगा, तो अगर यहाँ पे मूव करवा के मिडल में रोक दें तो आपको क्या मिलेगा? नो करंट विल बी फ्लोन, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। लेकिन यही मैग्नेट आप कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहो मेरा बेटा, मूव करने की वजह से क्या होगा? मूव करने की वजह से आपकी डिफ्लेक्शन शो होती रहेगी। ओके, सो दैट्स हाउ इट विल बी वर्किंग। इसको एक दफ़ा ध्यान से देखिएगा। होपफुली 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 उम्मीद तो है मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा, अगर कर दी तो देख लीजिएगा, उधर भी इसको रिपीट में देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अच्छा जी, अच्छा जी बेटा, the next question right here is the figure 9.1 shows a beam of radiation in a vacuum. The beam contains alpha particles, beta particles, and gamma particles right here in front of you. This one is a very very clear crystal sort of situation because this example was done by us in the class as well. अच्छा जी, अब इसको तो होपफुली बच्चों आप विद इन फ्यू सेकंड्स इसको प्लीज़ जल्दी से आप लोग अपने पास सॉल्व कर लें, एंड आई विल बी जस्ट सॉल्विंग क्विकली राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू एज वेल। अच्छा जी, सबसे पहले आपने ये जो मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, वही आईजीसी वाला रूल आपके अपने माइंड में रिपीट कर लें कि अगर नहीं भी गिवन तो क्या है, इनटू द पेज है, क्रॉस है एंड क्लॉकवाइज। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली? अब आपकी जो यहाँ पे पार्टिकल्स हैं अल्फा बीटा एंड गैमा, उनको आपने इंट्रोड्यूस कर देना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बच्चों। अब जी उमर, क्लास एंड होने वाली है। ओके बेटा, नेक्स्ट में हम इसको स्टार्ट करते हैं फिर।